Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will be discussing about the very important as well as landmark judgment in the Indian Evidence Act, and the name of the judgment is the Gijaganda Somia versus State of Karnataka. So this judgment has been given by the Honorable Supreme Court in the 2007 year, and basically this judgment involves the discussion of the section number 3, basically with the circumstantial evidence, as well as section number 27, in which there are if confessional statement made by the person accused before the police, which also leads the police to discover any fact, such statement except the confessional one are the relevant statement. So evidentiary value of this section number 27 as well as circumstantial evidence are also has been discussed by the Honorable Supreme Court in this judgment. So if you want the PDF of this lecture and other lectures which are also which has been uploaded in our YouTube channel, you may also follow us on the Instagram, and also opt the option of the mail. So लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टूडेज टॉपिक एंड दैट इज द जजमेंट. सो हम जो है आपको इस जजमेंट में की पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. आप वीडियो को पॉज करके जो है वो लिख भी सकते हैं. Introduction, as you know very well, it involves the discussion about the admissibility of the confessional statement under section 27, as well as evidentiary value of the circumstantial evidence. Guidelines has been given by the Honorable Supreme Court, and this judgment is the appeal against the judgment of the divisional bench before the High Court of the Karnataka. And इस जजमेंट में जो है कर्नाटका की हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था 302 आईपीसी के अंडर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड साथ के साथ 8,000 रुपया फाइन. सो लॉ पॉइंट्स क्या हैं? अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी कि कैसे हम एक जजमेंट को सिविल, क्रिमिनल या फैमिली लॉ में या किस लॉ में किस टाइप से जो लिखें, किन हेडिंग से लिखें, चाहे वो हो जुडिशरी के एग्ज़ाम या फिर हो सेमेस्टर या फिर टर्मिनल एग्ज़ाम, तो फिर आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं. तो लॉ पॉइंट्स क्या हैं? Confessional statement before police are not relevant, as you know very well, under section 25 and 26. But disclosure statement which has been given by the accused to the police, even though such statement includes the confessional one, but excluding confessional statement, the disclosure statement are relevant under section 27 of the Indian Evidence Act. But there is a condition which has been given by the Honorable Supreme Court in this judgment, that if the guarantee has been given that the information was true firstly, and secondly that it can be safely allowed to be given in evidence, then such statement is reliable under section 27 of the Indian Evidence Act. अगर जो है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर उसको हम एविडेंस एज एविडेंस जो है कोर्ट में पेश कर सकते हैं, सेफ है वो, तो फिर जो है वो स्टेटमेंट को अलाउ किया जाएगा. As you know very well guys, section number 27 is the proviso of the section number 25 and 26. Now the word fact discover which has been used under section 27 includes not only the physical object produced but also places from which it is produced and knowledge of the accused. For example, where is the dead body of the person which has been buried by the accused himself, then the only person is the accused who have knowledge about that. So if he confess his guilt and give the information regarding the dead body of the person deceased, then such statement excluding his confessional part, but his statement which disclose the fact of the dead body, the place of the dead body, is also one the relevant under section 27. So circumstantial evidence, when case totally depends on the circumstantial evidence, the inference of guilt can be justified only when. Now condition also has been imposed in this judgment by the Honorable Supreme Court for the circumstantial evidence, that all the incriminating facts and circumstances are incompatible with the innocence of the accused or guilt of any other person.
as you know guys, you are very well aware with the पंचशील of the circumstantial evidence। अगर आपने हमारी ढल सिंह देवगन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की जजमेंट नहीं देखी उसकी वीडियो, तो फिर आप वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन नंबर 6 रेस्ट टेस्ट से साथ के साथ उसकी एविडेंशियली वैल्यू के साथ सर्कमस्टांशियल एविडेंस के जो पंचशील्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन साथ के साथ समझा है। तो इस वीडियो का जो पार्ट होगा जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस की एविडेंशियली वैल्यू बताई गई होगी वो मैं स्किप करूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही मैं अपलोड कर चुकी हूं इन द जजमेंट ऑफ द ढल सिंह देवगन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सो फोर्थ लॉ पॉइंट क्या है, दिस इज द मर्डर केस। अब भाई फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हम आपको बताएंगे इस केस के। दिस इज अ मर्डर केस, नो आई विटनेस वॉज एग्जामिन्ड, case totally based upon the circumstantial evidence and conviction on the circumstantial evidence, onus on the prosecution to prove the chain is complete and infirmity of lacuna in prosecution can't be cured by the false defense or plea। अब भाई इस चीज में तो है आप दो चीजें की बात की गई है इस पॉइंट में। पहला तो आपको पता लग ही गया होगा कि कन्विक्शन कैन बी मेड ओनली सोल बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस इफ दैट पर्टिकुलर पंचशील हैज बीन फुलफिल्ड ऑफ द केस फॉर द केस, ठीक है। दूसरी बात की गई है, अगर जो है प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है या फिर कहीं भी जो है थोड़ी सी भी कमी रह जाती है बाय द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द एसेंशियल्स ऑफ द क्राइम, ठीक है, तो फिर जो है चाहे कोई भी फॉल्स डिफेंस ली गई हो बाय द डिफेंस पार्टी, उस पर भी जो है वो टिक नहीं सकता केस, अगर जो है प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है उस इसेंशियल्स को पूरा करने के लिए। अब भाई फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है इस केस के। मैं सिर्फ आपको जो है रीड आउट करके बताना चाहूंगी इन फैक्ट्स को, क्योंकि फिर जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चिंगप्पा डिसीज्ड है, ठीक है, उसकी वाइफ है PW1 बेबी चिंगप्पा, जो कि एंड जो बाकी के विटनेस थे वो सारे गढ़वाली विलेज के जो थे रेजिडेंट थे, ठीक है। कोई भी खास डिस्प्यूट नहीं था एक्यूज्ड एंड डिसीज्ड में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन जो है गीजागंदा फैमिली के पास 348 एकड़ की लैंड थी, जिसमें से 48 एकड़ जो है डोनेशन के लिए रखी गई थी। 6 शेयरर थे उस फैमिली के जो चाहते थे कि इक्विटेबल पार्टीशन हो, वो अपना हिस्सा लेकर जो है अलग हो जाए, ठीक है। तो सेम ही डिमांड की बाय द डिसीज्ड, पर एक्यूज ने जो है उस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, जिसके रिजल्ट के कारण जो है 29th मंथ 9th ऑफ द 1995 जो है उसका मर्डर किया गया बाय द एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। तो अब भाई क्या हुआ, 2 दिन पहले उस इंसिडेंट के रेवेन्यू इंस्पेक्टर को बुलाया था डिसीज्ड पर्सन ने, ताकि कि वो फैमिली का जो है लैंड देख सके और साथ के साथ डिटर्मिन कर सके शेयर, ठीक है। तो अब देखते हैं जिस 23 को जो है डिसीज जो है वो घर में से निकल गया, उसने जो है इन्फॉर्म किया अपनी वाइफ को कि वो माधोपुर में जा रहा है टू मीट द रेवेन्यू ऑफिसर। ही वॉज वेयरिंग HMT वॉच, गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन, साथ के साथ उसके पास 2500 रुपया था, ठीक है। उसने इन्फॉर्म किया वाइफ को अगर जो है वो शाम तक नहीं आएगा तो फिर वो है अगली सुबह जो है आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, डिसीज जो है वो आया नहीं मॉर्निंग तक 24 तारीख को, ठीक है। PW1 मतलब उसकी वाइफ जो है वो जा रही थी कॉफी लैंड की तरफ, उसने जो है देखा डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड ऑन रोड, ठीक है। तो उसने जो है वो वापस घर गई, इन्फॉर्म किया उसने ये सारा इंसिडेंट टू द फैमिली एंड हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो फिर से जो है वापस गई उस जगह पर। पुलिस जो है वो खुद भी उस स्पॉट पर पहुंच गई, रिकॉर्ड की उसने FIR PW1 के द्वारा जो है लिखवाई गई थी एंड रजिस्टर किया उसने केस अंडर सेक्शन 30234 ऑफ द IPC, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आफ्टर द मैंडेटरी प्रोसीजर द इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग वर कंडक्टेड एंड सर्च फॉर द एक्यूज्ड वाज कैरिड आउट। On 24th, accused number 1 appeared before the IO investigating officer and surrendered. He was taken into the custody and interrogated. His voluntary statement were recorded. As per his voluntary statement, gold chain, ring and weapon alleged to have been used in crime were discovered from his house and along with the blood-stained cloth which were subject to the forensic examination. As per all the reports, police filed
charge sheet against the accused under section 302 with 34 of the IPC. Accused person pleaded innocence and stated that because of the enmity they have been falsely implicated. ठीक है, तो इससे क्या डिसीजन आया था ट्रायल कोर्ट का? हेल्ड दैट एपिलेंट इज गिल्टी, हाउएवर co-accused was given benefit of doubt and order of acquittal was recorded. And after that decision of High Court, the circumstances were conclusive to prove the guilt of the accused and therefore confirm and the conviction and sentence by the dismissing the appeal. अब भाई उन्होंने अपील जो फाइल की थी उसको डिसमिस कर दिया, कन्विक्शन को जो है कंफर्म कर दिया. उन्होंने फिर से अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, कंटेंशंस क्या है एपिलेंट की? वो कहते हैं ये सारा जो है फैक्चुअल सिनेरियो जो है इस्टेब्लिश किया गया है बाय द प्रोसिक्यूशन डज नॉट इस्टेब्लिश the guilt of the accused and the circumstances highlighted by the prosecution to establish its case does not present a complete chain of the circumstances to warrant any inference of the guilty. अब भी उन्होंने कहा ये जो भी इन्होंने स्टोरी बनाई है इससे जो है कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा, एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा कि हाँ ये जो सारा काम किया, ये जो सारा मर्डर का है सिर्फ और सिर्फ एक्यूज पर्सन ने ही जो है जो सारा काम किया है. अब भाई लीगल इश्यूज क्या है? वेदर कन्विक्शन एंड सेंटेंस बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस इन द इज सस्टेनेबल और नॉट, वेदर सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज क्लियरली एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांस ऑफ द केस और नॉट, whether statement made by accused before the police amounting to confession or not. ठीक है, तो अब हम देखते हैं गाइडलाइंस जो है दी गई थी बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस. इस वीडियो में जो है हम ये गाइडलाइन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं इन गाइडलाइंस को इन द प्रीवियस वीडियो डल सिंह देवगन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं गाइडलाइंस क्या इशू की गई थी फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट. उन्होंने कुछ प्री रिक्विजिट्स बताए. इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन मस्ट बी सच एज हैज कॉज्ड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट. इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ द सेक्शन नंबर 27 कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होना ज़रूरी है उस इंफॉर्मेशन से. इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेट करनी चाहिए टू द फैक्ट डिस्कवर्ड अंडर सेक्शन 27, तब ही जो है उस इंफॉर्मेशन को हम रिलायबल मानेंगे. ठीक है, अगर जो है सच में जो है फैक्ट की डिस्कवरी हुई है. अब कोर्ट ने क्या ध्यान में रखना है? द नेचर ऑफ द प्रिजम्पशन अंडर द इलस्ट्रेशन नंबर A-S ऑफ द सेक्शन नंबर 114. अब भाई उन प्रिजम्पशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि दीज प्रिजम्पशन आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ प्रूडेंस. ठीक है, तो कोर्ट ने जो है प्रिज्यूम किया एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपन्ड बाय ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस irrespective of natural events for the relation to the facts of the particular case. उन्होंने कहा इस केस के सारे फैक्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं ह्यूमन के कंडक्ट को या फिर प्राइवेट बिजनेस को, साथ के साथ नेचुरल इवेंट्स को भी. ठीक है, तो इट इज़ द फिट केस फॉर द सेक्शन नंबर 114. ठीक है, आगे देखते हैं. इन केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू सन ऑफ गोपीनाथ शिंदे 2000 का केस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. इसमें क्या किया गया था? डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय द सब्सिक्वेंट इवेंट दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द प्रिजनर टू द पुलिस इज ऑल्सो अ रिलायबल इंफॉर्मेशन. इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन मतलब कि अगर जो है वो बंदा कंफर्म कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन दी गई है बाय द एक्यूज पर्सन टू द प्रिजनर, वो प्रिजनर जो है वो जाकर पुलिस को बताता है उसी इंफॉर्मेशन को, तो फिर वो भी रिलायबल है. सेक्शन नंबर 25, 26 एंड 27 की रेफरेंस देते हुए इस जजमेंट ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया सेक्शन नंबर 27 इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द 25 एंड 26. ठीक है, तो which shows that if a fact is actually discovered in consequences of the information given, some guarantee is afforded thereby that information was true and allowed as evidence. अब ये बात बेयर एक्ट में नहीं लिखी हुई, ये बात बताई गई है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ईयर 2007. तो
गारंटी होनी चाहिए कि हाँ वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, साथ के साथ उसका जो है एविडेंस जो है हम पेश कर सकते हैं इन द कोर्ट। एट लास्ट डिसीजन अपील जो है डिसमिस कर दी गई। कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर सेक्शन 302 बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस एंड सेक्शन नंबर 114 इज क्लियरली एप्लीकेबल ऑन द केस। ठीक है, तो अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।